Let's now listen in to the conversation between my colleague Pranesh and Mr. Tripathi. There's so much attention on Ram Mandir. The idol of Ram Lala thinks he's wearing what has been done to the temple complex. It's only fair that we have two eminent people with us, very closely related to what is happening in Ayodhya and the idea of Lord Ram. Akshat Gupta is an author, needs no introduction, very popular on social media. Manish Tripathi is really the man of the moment. He is the one who's designed the dress that you've seen Lord Ram adorn in the idol inside the mandir. Manish, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, इतने सालों के तपस्या के बाद ये मंदिर बनी और उसमें जब गर्भगृह में रामलला को रखा गया, क्या कपड़े पहनेंगे वो, उसकी जिम्मेदारी आप पे है? डेफिनेटली ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और ये विषय जो है सिर्फ डिजाइनिंग और फैशन का नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने को पिंच करके देख रहा हूँ कि ऐसा ही मैंने किया है। मतलब मैंने किया नहीं, मतलब मुझसे करवाया गया, जो प्रभु ने चूज किया कि तुम्हें ये काम करना है। तो ये विषय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजाइनिंग कलर से ज्यादा उन लोगों की आस्था का विषय था जिनको भरोसा था, जिन्होंने अपने मन में एक परिकल्पना कर रखी थी कि प्रभु कैसे दिखेंगे, भगवान कैसे होंगे, और आज से नहीं 500 साल से वो सोच रहे हैं कैसे दिखेंगे। तो इसको बनाना, इसको सामने लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। डर भी था, लेकिन एक जैसे कहते हैं जो एक मेरा सबसे बड़ा जो औजार, सबसे बड़ा जो एक आधार था, वो ये विश्वास था कि जिस विश्वास से हम रोज प्रार्थना पूजा करते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का उसके पास जवाब होगा। तो शायद उसी आस्था को, उसी को अपना आधार बनाकर मैं प्रभु से वार्तालाप करने की कोशिश करता था और पूछता था कि आपको क्या पहनना है, शायद वो मैं बना पाऊं। Akshat, you know, so much has been written and said about the Ram Mandir, the entire controversy about Pran Pratishtha. Now that it has happened, what would you tell our viewers watching this show right now? Wasn't it needless? Shouldn't it stop? Because it is still raging. It will always rage. And it's time that we start not fearing it. It's okay. I often say that, you know, you cannot convince and you cannot satisfy everybody. ना हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, ना गांधी जी से पूरी दुनिया प्रेम करती है. So you cannot keep everybody happy. Who are happy, who are not, may God be with them too. You've, you know, said recently in a podcast that if Jesus and Allah can be given a global name, why not Ram? That there is a move to globalize Ram. In a way, how do you see what you said with how the people celebrated the Pran Pratishtha? एक तो बहुत बड़ा दिन है और जिस सवाल को आपने उठाया है, आई ऑल्सो ऑलवेज से कि ईसाई और कसाई का झगड़ा आज से नहीं है. It is our turn to decide whether we want to be on table or in the menu. So if we are not on the table, we will be in the menu. And it's not about Hindu or Muslim or Sikh or Isai. It is the human nature that if you will not fight for yourself, if you will not defend yourself, you will be banished, you will be cleansed of this planet. And this is not me saying. Our history says it, the world history, the global history says it. So many civilizations which is now extinct just because they couldn't fight themselves. So that's the truth. People like it or not, that's the truth. What do you mean? So yes, what should people do? Are you talking about the cultural reawakening? Of course. I mean, none of us have, even in the film saw, till date, we have not seen trees flying. Because those trees that can't speak to us, they also know कि हम तभी तक जिंदा हैं जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े. So if they can understand that they have to be connected to their roots to be alive, we still have brains and mouth to speak and think. So it's not rocket science to understand that we are alive because we are still rooted.
And the day we will leave our roots, and the day all these civilizations which are not there anymore left their roots, they are now extinct. अक्षत, आप जो कह रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये एक तरह से आप मजॉरिटेरियनिज्म को इम्पोज कर रहे हैं। ये जो असर्शन है ये प्रोवोकेटिव है, इंसाइटफुल भी कह सकते हैं लोग, तो उनको आप कैसे समझाएंगे? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि हम सबको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं। किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं है, लेकिन हम एकलौती ऐसी कौम है जिसके हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है, पर हमारा शस्त्र इज नॉट फॉर ऑफेंस, हमारा शस्त्र इज फॉर डिफेंस, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, एंड दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर, दैट हमारे देश में डिफेंस मिनिस्ट्री है, ऑफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। हमारे देश में ऑफेंस मिनिस्ट्री होती तो फिर मेरी बात गलत हो सकती थी। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि कुछ लोग कहेंगे वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव कैन बैकफायर। Who is not wearing other than us? Not all of us, other than some of us. Who else do you think is not wearing their religions on their sleeves? You see any other religion and you know without even speaking to them who they are. It's just us. We are diluted. We have started taking pride into हम तो पानी है जी, हम तो कहीं भी घुल मिल जाते हैं, तो पानी का अस्तित्व रहता ही नहीं है ना, वो जिसमें घुलता है वो हो जाता है। थिंक अबाउट इट। आप दूध में मिलाएंगे तो वो दूध कहलाएगा, वो पानी नहीं कहलाएगा। आप जूस में मिलाएंगे तो जूस कहलाएगा, पानी नहीं कहलाएगा। पानी का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो पानी है, और अगर आप पानी है और इतने ट्रांसपेरेंट हैं तो आप सब में मिल लेते हैं। आपकी अच्छाई में गिनती होनी चाहिए, आपकी कमजोरी में नहीं होनी चाहिए। पर जब ये यही बात आपकी कमजोरी में काउंट होने लग गया है तो आपको बताना पड़ेगा कि हम ये करने वाले लोग हैं, पर जरूरत पड़ेगी तो ये करना आता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी राम राज्य की बात करते हैं, उन्होंने अपने संवाद में कल कहा कि राम सबके हैं जी, राष्ट्र के हैं, विश्व के हैं जी। उसके क्या मायने हैं? उसके मायने ये हैं कि पल पल में, युग युग में, क्षण क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। प्रणाम सिया राम, करो करे विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। हमने आपको नहीं नुकसान किया, हम कभी नहीं करेंगे। आप यहाँ हैं क्योंकि उस समय जब कोई और रिलीजन नहीं होता था तब हमने आपको अलाउ किया यहाँ आने। मैं बात कर रहा हूं अपने पूर्वज और उनके पूर्वजों की। तो हम तो तैयार हैं आपको लेने के लिए। यहूदी भी आए थे, एक बड़ी अच्छी बात हुई थी, उसमें हमने कहा था कि अरे आप आओगे तो ग्लास तो भर गया है, उसमें और दूध या पानी की जगह नहीं है। तो मुस्कुरा के उन्होंने बोला था कि हम शक्कर बन के घुल जाएंगे, आपके कल्चर में मिठास घोलेंगे। तो माइनॉरिटी की अगर बात करेंगे तो माइनॉरिटी तो बहुत ज्यादा और छोटी माइनॉरिटीज हैं, उनको तो कोई खतरा नहीं लग रहा, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। बट सनातन धर्म के बारे में अक्षत आपने भी सुना होगा, क्या क्या कहा गया, लिखा गया। किसी ने कहा एड्स है, लेप्रेसी है, HIV है, हिंदू का मतलब गंदा होता है। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है राम मंदिर की, वो जो एक कमेंट्री है सनातन बैशिंग, अगर आप लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कहें उसको जी, वो अभी भी शुरू है जी। इसको कैसे देखना चाहिए? इसको कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए सभी को जो उसको बैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूं, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूं, श्वेत भी हूं और शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूं, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूं, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम मैं हिंदू। भगवा दो रंग मिला के बनता है साहब, एक लाल है एक पीला है। लाल रंग जो है वो खून और खतरे का प्रतीक माना जाता है पूरे विश्व में। पीला जो है वो ठंडक और चंदन का प्रतीक माना जाता है कम से कम भारत। ये दो रंग मिलके वो भगवा बनता है। मैं अगर भगवा पहन रहा हूं, भगवा ओढ़ रहा हूं या भगवा लहरा रहा हूं, तो ये मेरे हाथ में इस बात का निर्णय नहीं है, ना हो सकता है कि आपको भगवे के उन दो रंगों में से कौन सा रंग दिख रहा है। आप मुझसे प्रेम से मिलेंगे जी तो मैं आपको चंदन की ठंडक वाला भगवा दूंगा। आप मुझसे तैश से मिलेंगे, तो आपको खुद खतरे वाला लाल दिखेगा।
ये इस पे मेरा वश नहीं है, इस पे आपका वश है। आप मुझसे कैसे मिलना चाहते हैं वो डिसाइड करेगा कि आपकी नजर में मेरे भगवे का रंग क्या है। और आपसे जो मैंने कहा सनातन के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, उसमें एक एडिशन भी है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बयान दिया है, मैं आऊंगा उस पर अक्षत, लेकिन मनीष हमारे साथ है। मनीष, आप से बहुत लोगों के मन में ये है, प्रश्न है, इसीलिए मैं चाहता हूं आपसे ये पूछ लूं कि आपने कितने कपड़े डिजाइन किए हैं, तैयार रखे हैं रामलला के लिए, कितने दिन में वो बदले जाएंगे? प्रभु श्री राम के लिए जो यहाँ के जो एक ट्रस्ट द्वारा जो निर्धारित जो चीजें हैं उसमें हिसाब से प्रतिदिन का कलर अलग है, रंग अलग है, और हर दिन का पोशाक भगवान का अलग है। इसको हमने मतलब एक हफ्ते का अभी पूरा वार्डरोब तैयार रखा हुआ है भगवान के लिए, और उसी को वो अभी हमने ऑलरेडी समर्पित कर दिया है, और उसके बाद देखते हैं आगे की क्या योजना बनती है, आगे कैसा आदेश मिलता है उसका हम निर्माण करेंगे। जी, आपने जो पोशाक बनाई है मूर्ति के लिए, जी उसमें कोई कट्स नहीं है, बिना कट के आपने ये पोशाक बनाई है। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों है और क्या चैलेंजेस थे? जी देखिए, चैलेंजेस ये था कि सबसे बड़ा पहली बात तो कि जो मूर्ति है, जो प्रतिमा भगवान की श्री रामलला की बनी है, उस मूर्ति को सिंगल रॉक पे बनाया गया है, जो कि अरुण योगीराज जी ने उसको घेरा है, और एक सारा का सारा दारोमदार वो एक सिंगल रॉक पे था। तो कहीं पे भी अगर अपनी ईज के लिए अगर मैं कहीं भी कट लगवाता या वो कट लगाते या कुछ ऐसा होता, तो कहीं ना कहीं पत्थर उसमें जो जिस पत्थर पे जिस बनाया शायद वो पे उस पे वो असर देता, बिकॉज उसको हजारों साल के लिए बनाया गया है। ये 10, 15, 20, 50, 100 साल का विषय नहीं है। तो एक वो चैलेंज था कैसे बिना उसको करे हुए, बिना कैसे उसके वो जो ड्रेप और जो डिजाइन है वो उस पे आ सके, वो एक चैलेंज था। तो उसके लिए एक स्पेशल पैटर्न क्रिएट करना पड़ा, उसके प्रोटोटाइप्स बनाने पड़े, और सबसे बड़ी बात जो एक विषय था वो ये था कि जब मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कपड़े डिजाइन करता हूं तो वो आदमी बता पाता है कि मेरा ये फिट है, मेरा ये कलर का चॉइस है, ये मेरा और वो एक अपने खुद के कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करता है। अनफॉर्चुनेटली या कह लीजिए फॉर्चुनेटली जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहाँ पे आइडल के साथ में वार्तालाप करनी थी, और मतलब ये जान पाना कि उन्हें क्या पसंद है, भगवान श्री राम को क्या पसंद है, वो क्या पहनना चाहते हैं, इसके लिए एक अलग ट्रांस में जाने की जरूरत पड़ी। आई थिंक अक्षत भाई उसको समझा पाएंगे ज्यादा बेहतर, लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि एक अलग लेवल पे कम्युनिकेशन करना पड़ा कि जहाँ पे मतलब क्योंकि हम कुछ नहीं होते करने वाले, वो करवा रहे हैं हमसे, तो रोज बस समर्पण भाव से कि आपको पता है अगर आपने चयन किया है काम करने का तो आप ही दिशा और मार्गदर्शन भी देंगे, तो काम सुलभ हो गए, आसान हो गए। कठिनाई तो थी। आपने जो ये बात कही, इसके बहुत ही डीप मीनिंग है, और अक्षत से मैं ऑब्वियसली पूछूंगा, लेकिन ये बताइए कि जो हमने कल जो पोशाक देखी वो उसका रंग पीला था, येलो था उसका कलर, मंडे का कलर, जबकि सफेद होता है। जी हाँ, क्योंकि उत्सव था, उत्सव का दिन था, इतना बड़ा समारोह, तो क्योंकि उत्सव के दिन पे भगवान पीला वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही यहाँ का वो है। और दूसरी बात क्या है कि प्रभु श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं, पीताम्बर कहलाते हैं, तो हमने इसीलिए पीताम्बरी कपड़ा ही हमने इस्तेमाल किया। पीताम्बरी कपड़े की खासियत भी है कि उसमें हाथ से बुना हुआ होता है, सॉफ्ट होता है। एक 5 वर्षीय बालक जो कि चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजा पुत्र हैं, ये ब्रीफ हमारे पास में भी था, तो वो उनका कपड़ा, उनका पोशाक अत्यंत भव्य और दिव्य होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे हैं, राम लला हैं, तो कोमल भी होना चाहिए, तो ये हमने ये पीताम्बरी वस्त्र का प्रयोग किया, जो कि हमने काशी में स्पेशली वीव कराया। इसमें स्वर्ण और चांदी के तार होते हैं, बारीक तार। जी जी, और उसके बाद जो इसमें जो मोटिव्स थे वो भी सारे वैष्णव पद्धति के मोटिव्स थे, जिसमें चक्र, गदा, पद्म, मयूर, ये सब का हमने मोटिव्स में इस्तेमाल किया। जो आप जो भी उस पे कढ़ाई देख रहे हैं, वो सारा का सारा काम नीडल का था, और जो कि हम लोगों ने यहाँ अयोध्या में रहकर ही काम किया। पूरी टीम हमारी यहाँ पर थी और हम लोगों ने यहीं पे बैठ के काम किया। ये कलर और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं अक्षत से पूछूंगा, बट मनीष मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि जैसे डिजाइनर्स अपने कपड़े पे एक मार्क छोड़ देते हैं, क्या आपने इसमें कोई लेबल लगाया है?
सर लेबल तो भगवान ने लगा Signature दिया सर लेबल तो भगवान ने लगा दिया। और देखिए सिग्नेचर, देखिए क्या होता है कि जो आपके कपड़ों में राम लला का लेबल लग गया है। सर मेरे पे लेबल लग गया आप पे लग गया, एक बिल्कुल। हाँ, तो मतलब मैं कौन सा लेबल लगाने वाला। और मैं फिर से कहूंगा बार बार कि ये प्रभु श्री राम ने ही बनाया है, उन्होंने बनवाया है। मुझे एक कहते हैं ना कि एक सिर्फ एक जरिया था मैं इस काम को करने का। और बस अभी मैं इसको अभी सोच कर रहा हूँ कि इस चीज को, इस पल को कि मैंने ये काम किया है। I can imagine, it must have been a huge challenge. Akshat, before we get into the significance of the color and the details design that Manish was talking about, allow me to read out to you what Swami Prasad Maurya has said. He says, ये सब पाखंड ढोंग आडंबर है, वैसे ही जो खुद भगवान है जो सबका कल्याण करता है, उसका इंसान की क्या हैसियत है कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर सके। ये लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। I mean, how do you respond to comments like these? He's obviously taking a dig at the Pran Pratishtha performed by the Prime Minister. You really think that it should even be discussed? I mean, disgusting things shouldn't be discussed. There's nothing that you and I need to discuss. उनके नाम में बड़े हैं उम्र में मुझसे, इसलिए मैं अपनी तहजीब, अपने लिहाज, अपनी मर्यादा में रह के बात करूंगा। पर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा और मैं चाहूंगा कि अगर ये स्टेटमेंट है तो पॉलिटिकल ही हो, क्योंकि अगर ये बुद्धिमत्ता का परिचय है तो मुझे उनसे पूरी सिंपैथी होगी। नहीं, वो यही नहीं रुके। मैंने आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि शुरू में आपने कहा कि कल्चरल रीअवेकनिंग की जो बात कही, अब उसको अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें ऐसे कमेंट्री के साथ, देखिए उन्होंने कहा है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वो संजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते? मुर्दे पत्थर नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोगों में ज़ॉम्बी का कल्चर नहीं है। कहाँ से पढ़ाई हो रही है वो मेरे को नहीं पता। और मुर्दे, कम से कम हिंदू मुर्दे तो इसलिए भी जीवित नहीं होते क्योंकि हम में अंत्येष्टि की प्रथा है। बाकियों पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, पर जितना मैंने फिल्मों में और वेस्टर्न कल्चर में देखा है, ज्यादातर कहीं से निकल के ही बाहर आते हैं। तो जिस दिन हो जाएंगे उस दिन उनसे पूछा जाएगा कि अब क्या कहना है। ओके, हम इस पे बहुत देर बात कर सकते हैं, लेकिन डिबेट करने में तब अच्छा हो जब बोलने वाला सामने हो। I understand. Akshat Gupta, Manish Tripathi, thank you for speaking to us. Manish, congratulations once again. Thank you. All the best to your team Thank you so also. I'm sure Akshat also wants to say something. Akshat, quickly, क्या कहना चाहेंगे आप मनीष को? बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे यूजुअली लोगों से कोई ईर्ष्या और जलन नहीं होती है, बट मैं बहुत खुश हूं कि मैं मनीष जी के प्रोफेशन में नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं उनके प्रोफेशन में होता तो अभी मैं उनसे बहुत जलन खाता होता। Okay, on that note, viewers, thank you for watching.